Hello students, I am Vishal Chourasia from CSE department, SISTec Gandhi Nagar, Bhopal. In previous lecture, we discussed about the concept of cloud governance and SAFER's service-oriented architecture of cloud governance model, in which we talk about the life cycle of cloud governance. In today's lecture, we are going to discuss about the concept of high availability. High availability is related with the services provided by the क्लाउड प्रोवाइडर आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कैसी होनी चाहिए? हाईली अवेलेबल. इट इज इक्वल टू 99%. द सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू 99%, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी 100%. 99% is equal to approximate 100%, but we are not telling 100% because IT services cannot be available to the 100%. There may be chance to lose the services, there may be chance to corrupt the services. So we are talking about if the services is available up to 99%, then it will be called as highly available. And what will be the time for this services? This is 5.25 minutes. This is the time duration in this services should be available. If this services is available in 5.25 minutes, then it will be called as highly available services. Now we talk about concept of high availability. I hope you understand what is highly availability. So take the example of Gmail. So you are using Gmail with एट अ टाइम विद द नंबर ऑफ़ यूज़र. एक ही टाइम पे नंबर ऑफ़ यूज़र जीमेल को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये सर्विसेज कैसी हैं? हाईली अवेलेबल. ये भी एग्जांपल है क्लाउड का. आपकी जो भी मेल पे जो भी रखा है वो एक क्या है? जीमेल का क्लाउड है. उस पर आपकी सारी सर्विसेज रखी हैं, लेकिन उसी मेल को, उसी जीमेल के प्लेटफॉर्म को एक ही टाइम में वर्ल्ड वाइड नंबर ऑफ़ यूज़र एक्सेस कर रहे हैं. तो ये सर्विसेज कैसी हैं? हाईली अवेलेबल हैं. इनमें कभी भी आपको ये नहीं मिलेगा कि आपका ओवरलोड हो गया है या डिले हो रही हैं आपकी सर्विसेज. बहुत माइन्यूट टाइम में आपकी सर्विसेज डिलीवर होती हैं. तो ये सर्विसेज कैसी हैं? हाईली अवेलेबल सर्विसेज. द क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ बिकम वेरी वाइड स्प्रेड विथ startups as well as division of banks, pharmaceutical companies and other large corporation using them for computing and storage. These are the different sector such as bank, pharmaceutical company and other large corporation using cloud computing for computing and storage. These services are essential services. These should be highly available. Example लिया हुआ है. For example, Amazon Web Services has lead the pack with its innovation and execution with services such as S3 storage services, EC2 compute cloud. EC2 stand for Elastic Compute Cloud, Amazon Elastic Compute Cloud, and Simple DB Online Database. These are the example where we use the cloud computing services. These services should be highly available. So what are the approach for high availability? The cloud computing enables economics of scale, facilitating high redundancy and geographically. It approaching high availability, a cloud environment required the implementation of patterns and practices that introduce high redundancy and strive towards a shared architecture. This is the block diagram. क्या बात कर रहे हैं हम कि अपनी रिडंडेंसी के द्वारा हम क्या करेंगे? हाईली अवेलेबल करेंगे. रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट हमने काय में देखा था? रेजिलेंसी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें हम क्या बात कर रहे थे? रिडंडेंसी ऑफ रिसोर्सेज. आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से होंगे? मे बी आपके सॉफ्टवेयर होंगे, हार्डवेयर होंगे. ये कैसे होंगे? हाईली अवेलेबल होंगे. दिस इज द ब्लॉक diagram key principle of cloud high availability which is up to the lower to higher. lower level पे क्या है? multi instance. these are the local clustering. आप अपनी ड्राइव को, स्टोरेज को क्या कर रहे हो? लोकल क्लस्टर में डिवाइड कर रहे हो. तो ये कैसा है? लोअर अवेलेबल है. आपके सिस्टम तक अवेलेबल रहेगा. मल्टी जोन में क्या किया आपने? डिफरेंट डेटा सेंटर बना लिया. एक ही लोकेशन पे आपने क्या किया? अलग अलग स्टोरेज क्रिएट कर लिए. तो क्या हो गया? मल्टी जोन हो गए. मल्टी रीजन क्या हो गया?
geographically separated. For example, अमेरिका, यूएसए, these are the regions. geographical separated है, कुछ डेटा सेंटर है जो कहाँ पर है, अमेरिका में है, कुछ डेटा सेंटर हैं जो कहाँ पे इंडिया में है, और इंडिया के अंदर उसे क्या डिवाइड कर देंगे, मल्टीपल जोन में. फॉर एग्जांपल मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, these are the different zone. And highly available is multi cloud or multi provider. This is called the cloud bursting. Cloud bursting, when the dynamic cloud is implemented on hybrid cloud, this concept is also known as cloud bursting. These are the highly available because the services are redundant on separated geographically region. Now we discussed each point separately. First is geographically separation. It maintains high fault tolerance by utilizing multiple zones, regions, and cloud provider. For instance, Amazon's EC2 currently supports some region in India, each split into several availability zones, demarcated by the different power resources and are physically segregated. Geographical separation में हम क्या बात कर रहे हैं, इट मेंटेन हाई फॉल्ट टॉलरेंस बाय मल्टीपल जोन रीजन एंड क्लाउड प्रोवाइडर. कैसे, आपने अपने डेटा को मल्टीपल जोग्राफिकल रीजन में, मल्टीपल जोन में डिवाइड करके रख दिया, तो यदि कोई फॉल्ट अकर होगा तो वहाँ से आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा. मल्टीपल प्रोवाइडर और मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर मतलब अलग अलग प्रोवाइडर के बीच में आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि आपकी यदि सर्विसेज एक क्लाउड प्रोवाइडर से नहीं हो रही तो आप वो पोर्टेबिलिटी के द्वारा दूसरे प्रोवाइडर से स्विच कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या है, रेप्लिकेशन एंड फेल ओवर. अब आपने क्या किया इसमें, इट इंश्योर डेटा रिडंडेंसी एंड बैकअप बाय कंटिन्यूस रेप्लिकेशन ऑफ डेटा अक्रॉस जियोग्राफिकल सेपरेटेड साइड. इन एडिशन, प्रोवाइड प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग टू ऑटोमेट failover operation, allowing application to rapidly come back online after failure occur. replication failover से क्या होगा कि यदि आपके सिस्टम में कोई फेल या बोलें डिज़ास्टर ऑकर हुआ, सिस्टम फेल हुआ, तो रेप्लिकेशन से क्या होगा, आपकी सर्विसेज नहीं रुकेंगी. आपका जो रेप्लिका बना हुआ है, रिडंडेंट रिसोर्सेज है, वो आपके सर्विसेज को क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे. यहाँ आपका सिस्टम फेल हुआ, आपने स्विच करके दूसरे जहाँ से आपका रेप्लिका बना हुआ है वहाँ से आपकी सर्विसेज एक्सेस करा दी, तो कंज्यूमर को, क्लाइंट को क्या है, सर्विसेज कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी. थर्ड पॉइंट क्या है, मॉनिटरिंग इलास्टिक स्केलिंग एंड क्लाउड बर्स्टिंग. इट इनेबल एंड एक्सनेबल मॉनिटरिंग टू इनेबल. फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, द इलास्टिक एक्सपांशन ऑफ रिसोर्सेज इन केस ऑफ लोड चेंजेस, अलाउइंग एप्लीकेशन टू ऑटोमेटिकली स्केल अप एंड स्केल डाउन. इलास्टिक एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर देंगे, स्केल अप कर देंगे, और जैसे जैसे हमारी डिमांड घटेगी तो हम उसके स्केल डाउन करेंगे. तो ये कैसा एक्सपांशन है, इलास्टिक एक्सपांशन ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड पॉइंट क्या है, द रिकवरी फ्रॉम failure by automatically scaling up a DR environment to handle the production load. What is DR environment? Disaster recovery environment. To recovery failure. आप बात कर रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सी सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज हैं जो कि 100% अवेलेबल ना हो कि 99% है, तो इनमें चांसेस है कि इसमें कोई फेलियर ऑकर हो. लेकिन फेलियर ऑकर होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म होनी चाहिए. दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, डिजास्टर रिकवरी. यदि कोई डिज़ास्टर ऑकर हुआ है तो उसमें डिज़ास्टर रिकवरी मैकेनिज्म के द्वारा सिस्टम क्या होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए, और कंटिन्यू उसे सर्विसेज मिलती रहनी चाहिए. लास्ट पॉइंट क्या है, द इम्प्लीमेंट क्लाउड बर्स्टिंग बाय डायनेमिकली डिप्लॉइंग आवर एप्लीकेशन ऑन टू मोर पावरफुल क्लाउड टू एड्रेस स्पाइक इन डिमांड. यदि आपकी डिमांड बढ़ रही है, रन टाइम पे आप क्या करेंगे, उसको पावरफुल क्लाउड पे ट्रांसफ़र कर देंगे. फॉर एग्जांपल, आप किसी एक पर्टिकुलर क्लाउड से अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विसेज ले रहे हैं, लेकिन वो सर्विसेज आपको रन टाइम पे और रिक्वायरमेंट होती है जो कि उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे क्या, मोर पावरफुल जो दूसरा प्रोवाइडर है जो आपको सारी सर्विसेज दे रहा है उस पर आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे कि आपकी डिमांड चलती रहे. ठीक है, तो ये आपकी क्या है, अप्रोचेस फॉर हाई अवेलेबिलिटी. यदि ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी सर्विसेज कैसी होंगी, हाईली अवेलेबल होंगी. अब हम बात करते हैं व्हाट आर दी चैलेंजेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन हाईली अवेलेबिलिटी. हमने बात तो कर ली कि हमारी सर्विसेज हाईली अवेलेबल होनी चाहिए, बट इनमें कुछ चैलेंजेस हैं. क्या चैलेंजेस हैं,
देयर आर टू सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स फेसिंग द स्केलिंग अप द अवेलेबिलिटी स्पेक्ट्रम। पहला क्या है, लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी, एंड सेकेंड ऑटोमेशन इमेच्योरिटी। लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी जो हमने बात की कि यदि कोई सिस्टम फेल हो रहा है तो आप दूसरे उस पर स्विच कर लें, तो ये पोर्टेबिलिटी इतनी इजीली नहीं हो पाती है कि आप रन टाइम पे एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर पे स्विच कर लें। तो अभी क्या है, लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी और ऑटोमेशन इमेच्योरिटी। यदि आपके सिस्टम में कहीं काम करते हुए फेल आया तो आपने क्या बात की कि आप दूसरे पे स्विच कर लेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं हो पाएगा, आपको इसके लिए मैनुअली दूसरे प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना होगा, उसकी सर्विसेज आपको लेनी पड़ेंगी। ये ऑटोमेटिकली दूसरे प्रोवाइडर पे स्विच नहीं कर पाता। तो ये क्या है, चैलेंजेस हैं हाईली अवेलेबिलिटी के लिए। दिस कॉन्सेप्ट complexity emerges mostly from the need to design and implement custom automation solution। यहाँ पे हमें कैसी चाहिए है, कस्टम ऑटोमेशन सॉल्यूशन चाहिए, वहाँ पे मेनली हमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है। इट रिक्वायर ऑटो डिप्लॉयमेंट अक्रॉस ट्रेडिशनल डेटा सेंटर, जोन, रीजन एंड प्राइवेट ऑब्लिक पब्लिक क्लाउड्स। ऑटो डिप्लॉयमेंट अक्रॉस दी ट्रेडिशनल डेटा सेंटर। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर मतलब जो पहले हमारा मैकेनिज्म था सर्वर क्लाइंट वाला, उसमें हमें दिक्कत आती है काय में, ऑटो डिप्लॉयमेंट में। जहाँ पे हम काय की बात कर रहे हैं, डिफरेंट रीजन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट जोन की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिप्लॉयमेंट मॉडल, प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। सो द लैक ऑफ पोर्टेबल क्लाउड मेक इट डिफिकल्ट टू retarget cloud deployment application to another provider. This is due to variance between APIs and resource semantics and data center level of abstraction। अब इन पॉइंट्स को हमने बात की कि ये इन पॉइंट्स में चैलेंजेस हैं। अब एक करके इनको देखेंगे। पहला क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन का क्या कि आपने बोला कि आपकी यदि सर्विसेज करप्ट हो रही हैं तो आप दूसरे प्रोवाइडर पे स्विच कर लेंगे, लेकिन उसकी क्या होंगे, दूसरे प्रोवाइडर की आपकी क्या होंगे, अलग स्टैंडर्ड होंगे, अलग आर्किटेक्चर होगा, अलग उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे, तो उनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। अभी आप एक से जो सर्विसेज ले रहे थे उसकी सर्विसेज आपको पता थी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या क्या है, लेकिन यदि वो करप्ट होता है और यदि वो उसमें सब आपकी अवेलेबिलिटी पूरी नहीं होती है तो हाईली अवेलेबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, पोर्टेबिलिटी करेंगे। तो वो पोर्टेबिलिटी में दूसरे जो प्रोवाइडर के पास जाएंगे उनमें क्या होगा, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होगा। द प्रोमाइस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज दैट इट प्रोवाइड अ यूजफुल एब्स्ट्रक्शन आइदर एट द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन लेवल। ये आपकी तीनों सर्विसेज हो गई, आस पास सास। However, the specifics of these abstraction vary greatly as we look into the ontology of their data centers and the hierarchy of resources within. As move our architecture to a different cloud will run into the sum from impedance mismatch between the generic of your deployment model। क्या बात कर रहा है कि यदि आप स्विच करते हैं डिफरेंट आर्किटेक्चर पे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मिसमैच हो सकता है आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल में, एंड स्पेसिफाइज ऑफ अ सर्टेन आईएस मॉडल। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्लाउडिफाई इंक्रीजिंग resiliency without the complexity। Although the cloud vendor provide the simplified access to a large pool of resources through the API call, this does not mitigate the increasing cost of implementing high availability and disaster recovery through custom automation approaches। क्या बात कर रहा है ये कि आपने यदि इंक्रीज कर ली रेजिलेंसी तो ये क्या होगा, इन्वायरमेंट तो आपको मिल गया हाईली रेजिलेंट, है ना, आपने अपने डिफरेंट डिफरेंट जोन में अपना डेटा को कॉपी करके रख लिया, लेकिन अब आपने जो प्रोवाइडर है वो कुछ एपीआई यूज़ करेगा, जो एपीआई एक प्रोवाइडर की होंगी वो दूसरे प्रोवाइडर की नहीं होंगी, तो यदि आप दूसरे प्रोवाइडर पे स्विच करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो ये क्या है, चैलेंजेस। नेक्स्ट हमारा क्या है, different API। The set of cloud API vary drastically across the different cloud provider. In addition to the nuts and bolt to provision resources, security policy, authentication key, general administration workflow vary greatly from one cloud provider to another cloud provider। पहले हमने सबसे पहले बात क्या की, डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की, फिर हमने बात की क्लाउडिंग इंक्रीजिंगली रेजिलेंसी विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी, और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एपीआई। डिफरेंट एपीआई क्या, कुछ
एपीआई होंगी हर प्रोवाइडर की, जो कि क्या करेंगी, आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड होंगी, ऑथेंटिकेशन की से रिलेटेड होंगी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगी, वर्क फ्लो आपका डिसाइड करेंगी, ठीक है। बट अलग अलग प्रोवाइडर की ये अलग अलग पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। तो आप यदि इनके बीच पोर्टेबिलिटी करते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो आपने बात की हाईली अवेलेबिलिटी की। हाईली अवेलेबिलिटी क्यों चाहिए? आपके सिस्टम को रिलायबल बनाने के लिए। आपके सिस्टम को हाईली रिलायबल कब बनाएंगे? जब वो हाईली अवेलेबल होंगी, उनकी सर्विसेज कंज्यूमर को हाईली अवेलेबल होंगी। कितने परसेंटेज तक? 99.9% तक। और कितने टाइम तक? 5.25 मिनट्स तक यदि वो अवेलेबल है तो वो कैसी होंगी? हाईली अवेलेबल होंगी। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। पहला, डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सेकंड, डिफरेंट एपीआई। थर्ड, क्लाउडीफाई इंक्रीज द रेजिलेंसी विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर है? In next topic, we will discuss about the concept of disaster recovery. Thanks for today.